Good morning, everyone. A warm welcome in MHR Public School, Malvi Nagar CBSE branch. First of all, we are very happy today that one of the renowned, realistic, enthusiastic resource person, Mr. Vipin Sharma, is among us. So, clapping for our resource person. We always talk about the theme knowledge of our environment. I always say that in this school industry, you are appointed here either by choice or by chance. So now there is no discussion that you are appointed as by choice or by chance. Now you are fully dedicated as a teacher community member here. So when we talk about our workshop, I have also discussed with Vipin sir that what should we do, what should we not to do. But he is always saying that we should do as our work priority. And it is only possible when you are engaged, you are fully devoted in your own profession. तो भगवान की दया से, परमात्मा के आशीर्वाद से हम महात्मा हंसराज जी के स्कूल में बैठे हुए हैं। उनके आशीर्वाद लेकर हम अपना नया सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। रिसोर्स पर्सन के रूप में हमारे बीच में श्री विपिन जी हमारे पास हैं। उनसे हमें बहुत कुछ सीखते हुए परमात्मा से आशीर्वाद लेकर अपने कार्य को आगे बढ़ाना है। फिजिक्स इनका सब्जेक्ट है और बहुत सारे इंस्टीट्यूट, बहुत सारे प्रिंसिपल को इन्होंने जनरेट किया है। वर्ड यूज कर रहा हूं मैं। जैसे मैं आपको कहता हूं कि भाई हमारे बीच में से ही, क्योंकि हम कब तक काम करेंगे, वी विल डेफिनेटली ए पार्ट ऑफ रिटायरमेंट। तो आप लोगों को ही एज ए हेड, एज ए कोऑर्डिनेटर, एज ए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आपको जो है वो पोजीशन होल्ड करनी है। और उस पोजीशन होल्ड करने के साथ साथ अपने जो एथिक्स हैं, अपनी जो वैल्यूज हैं, जो एजुकेशन की बेस्ट वैल्यूज हैं, बिकॉज इट इज द नोबलेस्ट प्रोफेशन इन दिस वर्ल्ड, आपको उस चीज को कायम रखते हुए आगे बढ़ना है। तो अब कोई ज्यादा टाइम ना लेता हुआ मैं मोनिका मैम को बुलाना चाहूंगा कि वो भी इनके बारे में बताएं। पर मेरे को पता चला है कि भाई हम सर को ही कॉल करेंगे। और आई इनवाइट विपिन शर्मा जी टू कम ऑन द डाइस एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, बिकॉज आई नो वेरी लेस अबाउट योर सेल्फ। सो he will start and we will clap for his presence in front of us. Thank you, Honorable Principal Sir. Respected Principal Sir, Coordinator, Vice Principal and teachers. To tell about me, it is embarrassing. You can Google Vipin Sharma Physics. You will get my Janam Kundali. ठीक है? तो मैं I think I should be known for my deeds. Let you decide whether I deserve that or not, because ये award एसेट्रा तो मिल जाते हैं, लेकिन उसको जस्टिफाई करना इट्स अ चैलेंज, राइट? तो आई एम अ सोल ऑफ ए टीचर एंड माय रोल मॉडल इज माय मदर, हु वाज माय बेस्ट फ्रेंड, माय बेस्ट गर्लफ्रेंड, एंड शी वाज माय प्रिंसिपल आल्सो. शी इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड, बट आई डेडिकेट माय ऑल whatever me is if I am to her only. So the word workshop, whenever a circulation is there, okay, tomorrow is a workshop, तो एक
अजीब सा फील आता है कि आज फिर पंगा है, पका के जाएंगे हमें, ऐसा 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 होता है। मैं थोड़ा सा लाइक टू टेल यू दैट माय वर्कशॉप इज वेरी ऑर्गेनिक. Those teachers who are from chemistry don't think that it's a workshop of hydrocarbons. No, not at all. My workshop is organic, means that I don't use PPTs, I don't use any multimedia. I will be interacting with you people all, and we will create problems. What we face and discuss problems and the solutions. It is not my workshop, it is everyone's workshop who is sitting here. Okay? I know that Principal Sir is having a hectic schedule, so thank you, sir. Thank you. No problem, sir. तो like मैं थोड़ा फ्री हैंड पे वर्कशॉप करता हूँ, मतलब मैं ये नहीं यूज़ करूँगा. होप चलेगा? ओके. दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि वर्कशॉप में हम लोग यू कैन आस्क मी एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन आस्क. आप मुझसे जितने चाहो उतने क्वेश्चंस पूछ सकते हो. If I know the answer, I will. If I don't know the answer, I will ask you. If you don't know the answer, फिर मुझे मजा आएगा. Okay? Means हम लोग एक joint venture में इस workshop को कैरी करते हैं. तो इससे पहले मैं workshop को start करूँ, I request mother teachers to be with me. I mean primary mother teachers जितने भी हैं वो जरूर चल के आएंगे मेरे पास. मानिका मैम, दिस वी डोंट नीड. हाँ जी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये फिक्स कर देता है. आइए प्लीज. आप लोग रिलैक्स होके आए. हाँ हाँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि प्रेस 1 फॉर इंग्लिश, प्रेस 2 फॉर हिंदी, प्रेस 3 फॉर पंजाबी. आई नो इंग्लिश, मुझे हिंदी का भी ज्ञान है, मैंने पंजाबी भी आउंदी है. ते हाँ, इस करके आप बिल्कुल रिलैक्स होके वर्कशॉप करनी है. वैसे भी जी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो कहते भी आप जिस भाषा च सोचते हैं, द लैंग्वेज विच वी फील लाइक कंफर्टेबल, उसमें हम ज़्यादा बेटर एक्सप्रेस कर पाते हैं. तो चॉइस इज योर्स. ठीक है, आई विल बी न्यूट्रल. हु इज द यंगेस्ट टीचर हियर? आई थिंक यू. कम. अगर नहीं भी है तो कॉम्प्लीमेंट है. आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ. ये एक्चुअली जो ये मदर टीचर्स हैं, इधर आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ. फर्स्ट ऑफ ऑल यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. My name is Anjali and I am a computer teacher, 3rd and 4th class. I teach computer and GK subject. Okay. So Anjali, suppose you are a student. मेरा, ठीक है? And you top in 10th class. Okay. You top in 10th class. And I am your class in charge. I'm principal also. I'm chairman also. Suppose 3 in 1. So what I'll do is I'll invite Anjali and पहले तेरे को ऐसे एक बर्फी खिलाऊंगा, उसका फोटोग्राफ. अगले दिन न्यूज़पेपर में ब्रेकिंग न्यूज़, MHR, अंजलि टॉप्स इन CBSE 10th, राइट? फिर उसके बाद that will be published in the newspaper. The very next day I'll put a status. फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे मेरा स्टेटस लगा होगा, माय स्टूडेंट अंजलि टॉप्स.
फिर मैं सुबह सुबह मार्केट में जाके पूछूंगा, भाई आज का अखबार देखा है क्या? हाँ जी दसो। फोटो देखी साड़ी आई है, मेरे बच्चे ने टॉप किया है, तो तुसी कहंदे हो जी मैं देख लेना है। मतलब आई फील सो प्राउड, है ना? तो आई हैव वन क्वेश्चन, यू नो हाउ टू वॉक, you know how to talk, you know how to write, you know how to count, you know everything, you know. I haven't taught you that. मैंने तो नहीं पढ़ाया वो। क्या ये लोग आपकी लाइफ में ना होते तो क्या पॉसिबल था तुम 10th में या +2 में मेरे पास आके पढ़ के टॉप कर जाती? No, sir. It wouldn't be possible. It would not have been possible. Yes, sir. The real credit goes to them. The real credit goes to them. Or mother teachers, you are a true representative of मां सरस्वती। और आप ना होते तो मैं भी यहां खड़ा होकर ना बोल रहा होता। तो आई ओ एवरीथिंग टू यू ऑल। ठीक है, अ स्टैंडिंग ओवेशन फॉर द मदर टीचर्स, राइट? इनके लिए क्लैप भी होनी चाहिए, ये डिजर्व। थैंक यू, थैंक यू। और ये जो मदर टीचर्स है ना, ये कहने को मदर टीचर्स हैं, इनमें से कोई तो मम्मी जी हैं, कोई बुआ जी हैं, कोई चाची जी हैं, कोई ताई जी हैं। इनको कोई भी मैम नहीं बोलता छोटा बच्चा। एम आई राइट? और जब वो आपसे पढ़ के घर जाएंगे तो वो आप ही बन के इमिटेट करते हैं, है ना? और कई लड़के इतने शरारती होते हैं, उसकी मम्मी पूछती है तेरी मैं शादी कर दूंगी, कि नहीं मैं तो मैम से शादी करवाऊंगा। मतलब दे पीपल आर सो इनफैचुएटेड एंड सो रियली it's an honor for me that I am sharing the same carpet where you are standing, right? So thank you dear student, Thank you, sir. thank you dear teacher. Thank you, sir. और अब आप आज के बाद सुबह उठ के मदर टीचर को जरूर याद किया करो, Okay, sir. ठीक है? उससे बड़ी वाइब्रेशन जाएंगी यूनिवर्स में और आपके अंदर और पॉजिटिविटी आएगी, ठीक है? थैंक यू, यू कैन गो। ओह वेलकम जी, वेलकम। नहीं आई एम डूइंग नथिंग, ये मेरी एक प्रेयर होती है। नहीं सर, स्पेशली इसलिए थैंक यू बिकॉज मदर टीचर्स को ना इतना मतलब अप्रिशिएट नहीं करते। ये होता है कि सीनियर क्लासेस में जब जाते हैं ना स्टूडेंट्स, तो ज़्यादा सीनियर क्लासेस पे ये होता है कि वहाँ पे सिलेबस ज़्यादा है, उनका वर्कलोड ज़्यादा है, तो प्राइमरी टीचर्स को ये होता है कोई बात नहीं, LKG UKG है, ABC करा रही है तो कोई भी करा लेगा। वाओ ग्रेट। बट ये नहीं पता कि छोटे बच्चे को हैंडल कैसे करना है। सबसे पहले तो आप अपना नाम हैंडल कीजिए। सर माय नेम इज बीना भारद्वाज एंड आई एम ए मदर टीचर ऑफ UKG क्लास। माई सेल्फ इज विपिन शर्मा गोत्र भारद्वाज। आई एम ऑल्सो सर भारद्वाज। हाँ, तो फिर ये मेरी सिस्टर बन गई है। तो ओके, इफ आई फेवर हर प्लीज डोंट फील जेलस, राइट? ओके, सो मैम बताइए, आप कुछ बताइए अपना एक्सपीरियंस और कुछ चैलेंजेस जो आप फेस करते हैं। एक्चुअली सर स्टार्टिंग में मैं कंप्यूटर टीचर थी जब मैंने स्टार्ट की अपनी टीचर जर्नी, बट सम टाइम ऐसा हुआ फर्स्ट टाइम मतलब कि उनका जो UKG का टीचर था स्कूल जिसमें मैंने स्टार्टिंग की थी अपनी टीचिंग जॉब, वो छोड़ के चला गया। तो उन्होंने मुझे एज ए सब्स्टिट्यूट बदला रखा था वहाँ पे। फिर सर को इतना अच्छा लगा कि उन्होंने परमानेंट ही UKG दे दी। उसके बाद मुझे भी अच्छा लगने लगा, एंजॉय करने लगी, मैं बच्चों के साथ खुद खेलने लगी। तो द वर्ड एंजॉय अंडरलाइन मैम। बहुत कम टीचर बोलते हैं कि मैं एंजॉय करती हूँ पढ़ाने में, नहीं तो बोलता ठीक है, अच्छा चलो। उसके बाद सर मुझे मजा आने लगा टीचिंग लाइन में, तो मैंने ये अपना प्रोफेशन बना लिया। यस, ये भारद्वाज लोग होते ऐसे हैं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। डियर टीचर, लाइक आप
जब ये मैम इंट्रोड्यूस करेंगे, और अपने मन में हर एक टीचर एक क्वेश्चन जरूर सोचे जो आपने मुझसे पूछना है। और परहैप्स हम लोग अगर आके यहाँ दिखाते तारे जमीन पर एवरी चाइल्ड स्पेशल, तो आपने बोल दो भैन जी ये तो पहले वाला भी दिखा के गया है ना। मेरी वर्कशॉप में आपको आप ही मिलेंगे और आपने डिस्कस करना है, फिर उसके बाद हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी ढूंढेंगे, ठीक है। और वैसे भी ना आप कंप्यूटर से एलकेजी यूकेजी में चले गए, 10th तक ना हर टीचर इच्छाधारी टीचर होता है। हम लोग इंग्लिश भी पढ़ा देते हैं, यस सर। आप बोले इच्छाधारी सांप, वो नहीं, इच्छा। हम मैथ भी पढ़ा देते हैं, हम हिंदी भी पढ़ा देते हैं, संस्कृत भी पढ़ा देंगे, मतलब हम कुछ भी मल्टी डायमेंशनल होते हैं, ठीक है ना सर। आर्ट एंड डांस भी। चलो दैट्स ग्रेट। सो प्लीज थैंक यू सर। My name is Ruchika Agarwal. I am primary teacher from LKG class. Last 15 years, I teach LKG and UKG classes. वाह ग्रेट ग्रेट। सर मुझे बहुत प्राउड होता है अपने ऊपर कि हमारे पास बच्चे से बिल्कुल कोरा कागज बन के आते हैं। यस उन कोरे कागज में सर हम जब कुछ मतलब उनको सिखाते हैं, उनको अपनी लैब में लेते हैं, सर छोटे बच्चे बिल्कुल अपनी मदर की लैब में से निकल के बाहर आते हैं, उनको अपनी लैब में लेना करना सर अच्छा लगता है। सब बच्चे भी खुश होते हैं कि हाँ मदर टीचर ने हमें बिल्कुल मदर वाली फीलिंग दी है, वो टच मिल रहा है बच्चों को हमसे मदर वाला। सब बच्चे भी हैप्पी होते हैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को देखते हुए कि हाँ घर से निकल के आए हैं 3 साल का बच्चा मदर की लैब में से, हमने वही फीलिंग दी है बच्चे को मदर वाली। सब बच्चे अच्छा फील करते हैं उस चीज़ को। गजब, बिल्कुल बिल्कुल मैम। और कुछ और ऐड करना चाहेंगे आप? सर आप क्वेश्चन कीजिए सर, मैं आंसर दे दूंगी। आप क्वेश्चन सोचिए, मैं नहीं करूंगा। क्वेश्चन आपने मुझसे पूछना है और मैंने उसका आंसर करना है। और कई बार क्या होता है कि आप मेरा प्रोफाइल देखेंगे, विपिन शर्मा नेशनल अवार्डी, ये वो, ये मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है, जो मैं अभी कर रहा हूं उसमें अगर आप लोग मेरे को बोलेंगे ठीक हुआ, देन आई फील आई डिजर्व, अदरवाइज तो नहीं। सो मीनवाइल आप सोचें, हम अनदर ऑनरेबल टीचर को। Good morning, everyone. My name is Kritika Chawla. Kritika? Kritika Chawla. चावला, ओके I'm in charge of LKG class. ओके मैम, Yes, I have experience of 10 years Okay. for LKG class. ओके मैम, नाइस नाइस। तो Yes. थैंक यू। कुछ हाँ बोलो 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 प्लीज। मेरे को बच्चों को पढ़ाना, छोटे बच्चों को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मेरे को LKG क्लास अच्छी लगती है मेरी। वाओ ग्रेट ग्रेट ग्रेट। बच्चे बिल्कुल ऐसे आते हैं, रोते हुए आते हैं और रोते हुए ही जाते हैं कि हमने LKG क्लास में ही रहना है, मैम कृतिका मैम के पास ही पढ़ना है, आगे नहीं जाना, हमारे को LKG क्लास की मैम ही हमारे को आगे चाहिए। Good morning to all. My name is Cherry Sharma. I am in charge of UKG class. मदर टीचर बनना बहुत मुश्किल है। हम अपने बच्चों को घर छोड़ के आते हैं, फिर आके यहीं पे मदर बन जाते हैं। उन बच्चों को जब मुझे फर्स्ट टाइम UKG अपॉइंट की थी कि आप UKG के बच्चों को पढ़ाओगे, आई हैव नो एक्सपीरियंस कि मैं कैसे हैंडल करूँगी बच्चों को। बट बच्चों के साथ जब अटैच किया तो लगा नहीं, ये हमारे अपने बच्चे हैं। वाह 6 घंटे हम बच्चों के साथ रहते हैं, लगता ही नहीं कि अपने बच्चे घर छोड़ के आए हैं, लगता है यहीं खेल रहे हैं बच्चे। वाह ग्रेट। जब बच्चे लंच करते हैं, स्पेशली टिफ़िन लेके आते हैं, मैम प्लीज़ थोड़ा सा शेयर कर लो, मैम प्लीज़। बच्चों की अटैचमेंट इतनी ज़्यादा हो जाती है मदर टीचर से स्पेशली कि वो बच्चे टीचर्स को भूल ही नहीं पाते। टीचर तो सभी हैं, सबको याद रखते हैं बच्चे लास्ट टाइम तक। अब सर भी अपने टीचर्स को याद करते होंगे, हम भी अपने टीचर्स को याद करते हैं, ठीक है। तो मैं यही कहूँगी कि टीचर ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हम बच्चे को छोटे से लेके बड़े तक सब कुछ सिखाते हैं। स्टार्टिंग में हम बच्चे को सिखाते हैं पेंसिल होल्ड करना, दैट्स अ LKG। लास्ट में हम सिखाते हैं 10+2 लाइक दैट, कि हमने कौन सा प्रोफेशन ज्वाइन करना है, कौन सा सब्जेक्ट लेना है। हम शुरू से लेके लास्ट तक बच्चे को गाइड करते हैं। इस प्रोफेशन को अगर हम अपना चॉइस बना के चलें तो मुझे लगता है हम देश को यहाँ से यहाँ तक पहुँचा सकते हैं। थैंक यू। सुपर्ब सुपर्ब।
मैं सर को बहुत ज़्यादा थैंक्स कहना चाहूँगी कि फर्स्ट टाइम किसी ने एज अ मदर टीचर को यहाँ पे अप्रिशिएट किया है। थैंक यू सर। Actually, I am giving all such kind of dedications to my mother teachers, and my own mother was also a mother teacher. So hardly a day passes that I don't recall her and her memories. A teacher always lived through his or her students, right? तो जितने भी बच्चों को हम पढ़ाते हैं, 50 साल, 60 साल के, 70 साल के भी हो जाए, तब भी वो आपको याद करेंगे कि हमारे मैम थे। अभी मैं सुबह मोनिका मैम को मिला तो मेरे को मोनिका मैम से डर लगा। क्यों? क्योंकि मोनिका मैम मेरे को चंडीगढ़ में सबसे ज़्यादा पीटती थी। उस वक्त कॉर्पोरल पनिशमेंट थी, बट ये मोनिका मैम तो बहुत नाइस है। तो उसके बाद फिर ऐसा लगता था कि जितनी भी मोनिका मैम है ये बड़ी स्ट्रिक्ट होती हैं, लेकिन अब तो ऐसा सिनेरियो ख़त्म हो गया है। उस वक्त तो लगते थे पटाखे। मैम, अब इफेक्टिव टीचिंग में हम हैं तो आपके जो कुछ चैलेंजेस होते हैं, जैसे कभी देखो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस वर्कशॉप में सभी को एक दूसरे से सुनने की, बात करने की, एक दूसरे को जानने की, और हम प्रॉब्लम्स को कॉमनली ले सकते हैं। ठीक है, मैं एक कोटेशन बनाया करता हूं कि ईगो किल्स बेस्ट रिलेशन। तो मतलब एक बात महान संत हैं, उन्होंने बोला है कम टू लर्न गो ईगोलेस। तो बाबा इकबाल सिंह जी, राइट। तो महात्मा हंसराज जी के बारे में तो बोलना दिए दिखाने वाली बात है सूरज को। तो इनका तो पूरा एजुकेशन फील्ड में क्या कंट्रीब्यूशन है, शायद मैं नहीं बात कर पाऊंगा उस पर, क्योंकि इनफाइनाइट। सो क्या चैलेंजेस आप फेस करते हैं और क्या क्वेश्चन आपके मन में होता है? हाँ, दीजिए इनको। सर, जैसे मुझे हमेशा एलकेजी मिलती है तो मन में एक ख्याल आता है कि ये मेरा प्रमोशन है या डिमोशन है, कि मुझे आगे नई क्लास नहीं दी जाती, कोई आगे मुझे अप नहीं किया जाता। पर फिर मैंने अपने मन में सोचा, अपने मन को समझाया कि नहीं, ये मेरा प्रमोशन ही है कि मैं एक क्लास को इतने साल से टीच कर रही हूँ, कि डिमोशन नहीं है मेरा, कि मैं सेट हूँ अपने क्लास में अपने बच्चों के साथ। और जो मेरी मैनेजमेंट है वो भी मुझसे सेटिस्फाई है कि एक टीचर सही है उस क्लास के लिए, तो इनको वहाँ से ना हटाकर इनको वही क्लास दी जाए। तो सर मैं इसको अपना प्रमोशन समझती हूँ। तो क्या सर सही है मेरा ये सोचना? सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, लोग आते हैं, लोग जाते हैं, हम वही के वही रह जाते हैं। तो मैंने ये चीज अपने सर को बोली, मिस्टर राजकुमार वशिष्ठ, हु वाज प्रिंसिपल इन पटियाला। मैंने कहा सर, वो जो होता है ना कि देखो सर हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए, आप वही के वही हो। कहता बेटा एक बात बोलूं? क्या बोलूं? यस सर। पंजाबी दे विच? यस सर, यस सर। कहता पानी जिन्ना मर्जी चढ़ते रहेगा तो बहेगा तो पुल दे हेठा। The level of river, whatever is, but the water always flow below. See, ma'am, I'll tell you one thing. What you are doing, this is the real service to the nation. ये राष्ट्र के प्रति सही सेवा है। लेकिन हम टीचर्स का एक ही प्रॉब्लम होता है कि हम पहले 15 दिन बड़ी खुशी से पढ़ाते हैं और आखिर के 15 दिन हमारा एनर्जी लेवल थोड़ा डाउन होता है। मालूम है ना? यस सर, थोड़ा सा है सर, होता है सर। जब तक ये भरा भरा है तब तक एनर्जी लेवल बड़ा अच्छा होता है। हेलो अग्रवाल मैम, कैसे हो? बढ़िया, ठीक है। और 15 तारीख के बाद नमस्ते अग्रवाल मैम, ठीक है जी, बस। सो हम हमेशा अंडरपेड है। मैं टीचर हूं मैम, ये रिसोर्स पर्सन, मोटिवेशनल स्पीकर कुछ नहीं होते। हम लोग एक जैसे हैं, फर्क इतना मैं यहां बोल रहा हूं, दैट्स इट। हालांकि बहुत सारे जो यहाँ इंटेलेक्चुअल्स बैठे हैं वो लेंगे क्या कर रहा है वर्कशॉप, ये तो मैंने भी पता है, ये क्या है मैंने भी पता है, मैं मर जाता है। इट हैपेंस कि ये जो सर बोल रहे हैं ये तो पेंजी मैं भी कर लूं। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कुछ भी नहीं है। प्रॉब्लम इज दैट के सड़क पे जब एक पत्थर पड़ा होता है, ट्रक वाला रख के जाता है,
तो सब लोग उसको देख के निकल जाते हैं। मैं ब्रेक लगा के उसको साइड पे करता हूं। क्यों? उसका साइज ऑलमोस्ट कार के निचले बम्पर जितना होता है, अगर वो टकरा गया तो हेड ऑन कोलिजन रात को तो एक्सीडेंट होता है। ठीक है, तो ये है इनिशिएशन। मैं 419th वर्कशॉप कर रहा हूं आज। आई हैव गॉन थ्रू 2 लाख 10,000 प्लस किलोमीटर्स, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, देन उत्तर प्रदेश, देन हिमाचल एंटायर, पंजाब ऑलमोस्ट हो गया, ठीक है, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर। तो मैंने इतनी वर्कशॉप्स की हैं, मुझे बहुत बढ़िया लोग मिले हैं, बड़े अच्छे स्टूडेंट्स के साथ मेरी 270 प्लस वर्कशॉप्स है। स्टूडेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ तो उल्टे बांस बरेली को। आप लोगों को वर्कशॉप देना तो चैलेंज होता है। आपको सुनता किसी की, मेरे को छोड़ के। मेरी तो ठीक चल रही है ना वर्कशॉप। नाइस सर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। देखो, इससे मुझे एंडोर्फिन मिला। एंडोर्फिन एक हार्मोन होता है, फीलिंग ऑफ वेल बीइंग। ठीक है, यस टीचर, आप ये तो छोड़ ही दो, कागज ही फाड़ दो कि आप एलकेजी में ही हो। नहीं, आपको पता नहीं है कि एवरी डे यू आर लर्निंग। ए गुड टीचर इज ऑलवेज ए गुड स्टूडेंट। एक अच्छा अध्यापक, एक अच्छा विद्यार्थी हमेशा रहता है, और एक अच्छा विद्यार्थी के अंदर भी अध्यापक छुपा रहता है। एक चंगे अध्यापक दे विच कंगारू दी तरह विद्यार्थी हुंदा है और टीचर भी हुंदा है। सो आई say you can do lot of research for your class. You can bring more innovative ideas, how the workshop, how the system, how you can carry. You can create so many things learning by doing. Okay sir. Learning by doing, interactive, ठीक है? Yes sir. Creative and practical, and one day you will become, you know, there is one teacher of Singapore, she taught 50 years nursery class. I had got a chance to attend one international sessions of principals, so I represented at that time Guru Nanak Foundation, Patiala and Delhi. So she has written so many books. She said, still I am learning. कई बार ना ये बड़ी छोड़ने वाली बात हुई। अभी तो मैं कहीं जान के ना बड़ा हम्बल बनते, अभी तो मैं विद्यार्थी हूँ, सीख रहा हूँ, मेरा ज्ञान तो ऐसे ही है। कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? जब आप इतने साल से पढ़ा रहे हो तो परफेक्शन आना शुरू हो जाता है। आपको सब्जेक्ट गोद ले लेता है। Yes sir. You are adopted by your subject. Yes yes. You can do wonders. Right? Yes sir. So- I agree with you sir. You have to agree with me because I am very nice resource person. Yes sir. God bless you. God bless you. Thank you sir. कुछ क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? No. Yes, आ गया कुछ क्वेश्चन दिमाग में? What challenges you face? Any question please? मतलब कुछ ऐसी चीज ना जिसका आपको लगे यार इसका कोई आंसर ही नहीं कर सकता। वही पीपीटी है। You get my point? मान लीजिए मैं YouTube से, Instagram से, इधर उधर से सामान उठा के पेन ड्राइव में डाल के यहाँ लाऊं, चला दूं। 80% लोगों ने तो वो देखी होती है, उठू चक के ले आया, उठू चक के ले आया। नहीं, this is pure organic workshop. We are creating our own content, and every teacher, every region has its own problems, right? So, My question regarding with my class student, मेरी एक क्लास में छोटी सी बच्ची है ऋषिका, उसको अगर मैं कुछ लर्न करवाती हूँ, जैसे मेरी टेबल से उसका बेंच इतना दूर है, से मैम बैठे हैं, वो मेरे पास लर्न करके जाती है पर बेंच तक जाते थे भूल जाती है, फिर वापस आती है, फिर मैं उसको लर्न करवाती हूँ, लर्न कर लेते हैं, फिर जाते थे भूल जाती है। तो इस प्रॉब्लम को मैं कैसे सॉल्व करूँ उसको? जब वो पैदा होने से पहले उसकी मम्मी ने कहीं पिक्चर तो नहीं देखी गजनी? तो पूछना पड़ेगा सर। क्योंकि उसमें शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस था, क्योंकि कहते हैं ना भी बच्चे जैसे माँ जैसा सोचती है वैसी बच्चे के ऊपर असर पड़ जाता है। तो वो कहीं गजनी बार बार देखी हो आमिर खान वाली तो बोलता भूल गया। नहीं मैम, एक्चुअली मैं आपको एक चीज बताता हूं, जो बच्चा है ना
उसको बोलो तू कुछ याद ही नहीं करना, ओके आपने बेटा स्कूल आना है, मेरे से बातें मारनी है। मैं आपको एक प्रैक्टिकल, अभी मैं इम्प्रॉम्प्टू सोचता हूं मैं क्या करूंगा आपकी जगह। हालांकि मैं नर्सरी एलकेजी में कभी जाऊं ना तो आई विल कमिट सुइसाइड। मैंने आज तक ना जिंदगी में जहां भी इतनी वर्कशॉप्स की हैं, मदर टीचर देखे हैं, एक भी फादर टीचर नहीं देखा। सही है सर, सही है। बल्कि मेरे को मदर टीचर्स इसलिए बहुत रिस्पेक्टफुल होते हैं कि एक बार मैं, एक जगह है हिमाचल में, चंशील एंड पब्बर से भी ऊपर, तो इट्स वेरी चिली एरिया। तो मैं स्कूल में वर्कशॉप तो नहीं, बच्चों के साथ इंटरैक्ट करता रहता हूं मैं। एंड मैं बेसिकली डायरेक्टर एजुकेशन इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ ACFI नीति योग के अंडर। तो मतलब आई हैव गॉट परमिशन टू विजिट स्कूल। तो जनरली टीचर से मैं कम मिलता हूं क्योंकि टीचर्स को सब कुछ पहले से ही आता है। बच्चों को जरूर मिलता हूं मैं, क्योंकि टीचर्स तो ऑलरेडी ज्ञान है। उल्टे बांस बरेली को आपको जो मैं सेशन दे रहा हूं, मैं तो नहीं कुछ कह रहा, आपने मुझे क्वेश्चन पूछा उसका आंसर करूंगा। मैं वहां गया तो मैंने मैम को बोला कि जी मैंने 10th को, 11th को, 9th को, 8th को बच्चों को मिला, मैं आपके किंडरगार्टन सेक्शन में जाना चाहता हूं। तो वो प्रिंसिपल सेड कि सर प्लीज आपका काम वहाँ क्या है। एंड वो एक्चुअली क्या होता है, जो छोटी क्लासेस होती है ना, उसमें जो बच्चा टेबल के पास आपके पास खड़ा है वही पढ़ रहा होता है, बाकी तो इधर उधर चल रहा होता है। तो उसको लगा कि ये बंदा बाहर से आया है तो इसके ऊपर कोई मैं कहा मैम आई बिलोंग टू स्कूल सिस्टम, तो ऐसा कुछ नहीं है। कहते सर चलो। वहां पर एक बच्चा मुझे छोटा सा मिला, तो उसके दांत टूटे हुए थे, 2 चेंज होता है ना जो एज में। तो मैंने बोला है तुम्हारे दांत कहाँ गए? तो ये चूहा ले गया। तो नॉर्मली पूरे इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में चूहा ही लेके जाता है। हाँ यही बोलते हैं। तुम कहते तेरा नाम क्या? कहते मेरा नाम गणेश। मेरा गणेश तो शिव जी का बेटा है? कहता नहीं मेरे पापा का नाम तो मिस्टर नेगी है। मैं कहा चलो गणेश जी के पापा भी शिव जी है, तो शिव जी तो सभी के फादर है, देवादिदेव महादेव हैं। तो कहता फिर मेरे पापा भी शिव जी है। मैं कहा तुम्हारे पापा शिव जी नहीं है, पर शिव जी का रूप है। कहता अच्छा, मतलब जब मैं पापा को देखूं तो मुझे शिव जी दिखे? मैं कहा बिल्कुल। और मैं 3-4 दिन के बाद मुझे कॉल आया प्रिंसिपल का कि सर आपसे कोई बात करना चाहता है। तो वो फोन कॉल मेरे पास आया, तो मैंने बोला वर्कशॉप बड़ी गजब की है, कोई तारीफ कर रहा। वो तू क्या सिखाओगे मेरे बच्चे को? मैं क्या मैं शिव जी हूं? और मेरे गले में सांप है? मैं क्या नहीं, और मैं प्रधान हूं गांव का, मैं नेगी जिसकी मर्जी को पूछ लेना, मेरे चलती है पूरी, CM तक कांपते हैं मेरे नाम से। मैं कहा जी मैं भी कांप रहा हूं, पर बताओ तो सी हुआ क्या? होना क्या है, सोमवार का दिन है ना आज, सुबह ये आया 5 बजे और टेम्परेचर था -3 डिग्री। इसने ठंडा जग पानी का सिर पे डाल दिया, कहता पापा जल चढ़ा रहा हूं। तो छोटे बच्चे इतना ज्यादा पिक करते हैं आपकी बात को, आप हल्का सा रो दो तो अगले दिन ब्रेकिंग न्यूज बठिंडा में आएगी कि अग्रवाल मैम क्राइंग। आज तक ब्रेकिंग न्यूज हो भी सकता है, शाम को 5-7 लोग चर्चा भी करें उस पर कि अग्रवाल मैम क्यों रो रहे थे, आप बताइए जरा। मुझे लगता है कुछ प्रताड़ित किया गया होगा या कुछ ये होगा वो होगा। एक्चुअली उस बच्चे को मैं जो सोचता हूं, मैं आपकी जगह क्या करूंगा, मैं बोलूंगा बेटा तूने कुछ याद ही नहीं करना, सियापा खत्म। ठीक, उसको बैठाओ अपने पास, बातें करो और उसको आप ना एक्टिविटी में लेके जाओ। आप में से कोई रील बनाता है? सब बनाते हैं, मैं भी बनाता हूं। हाँ ना, बनानी चाहिए। कई लोग बोलते हैं हम टीचर है, हमें सूट नहीं करता। अरे आप मेरा स्टेटस देखो, रोज उसमें मैं एक गाना डालूंगा। एक बंदा बोलता तू क्यों डालता है? मैं कहता तू ना सुन, मेरे को शौक है भाई, तू ना सुन। अब मेरे पास 400-500 प्रिंसिपल हैं, सभी प्रिंसिपल बिजी रहते हैं, है ना। अब मैं उनको रोज, पता क्या होता है, जब हम किसी स्कूल में जाते हैं रिलेशन बनाने शुरू, हेलो सर कैसे हैं आप, और सर मैं बाद में करता हूं। क्या जरूरत है, स्टेटस डाल दो
और वो बंदा रोज देख लेता है, बंदा याद करता है कि ये जिंदा है और ठीक है। सो आप क्या करो, ऐसे बच्चे को ना उसी की भाषा में, उसी के लेवल में चले जाओ। मुझे नहीं मालूम, मैं ऐसा करूंगा कि बेटा यार छोड़ पड़े पढ़ाई, मेरे को भी नहीं याद होता। सच्ची बताओ, आज मैं सुबह स्कूल आ रही थी, मैं किसी और ही स्कूल चली गई, फिर मैंने यहां लिखा कि मैं एमएचआर जाऊंगी। अच्छा मैम आप भी, यस तू मेरा बच्चा है। फिर उसको आप कुछ इंटरैक्ट करो, अगले दिन उससे पूछो कल मैंने तेरे को क्या बताया था, मैम कल आप स्कूल भूल गए थे। यस, ये याद रहेगा ना। धीरे धीरे उसको आप अपने साथ कनेक्ट करो। मैंने आप लोगों से कनेक्ट किया तो आप बोलेंगे यार ये वर्कशॉप बड़ी अच्छी है, ये बोलेंगे ना। अगर मैं यहां आता, ये कागज पे जो लिखा हुआ है, ये इसको उठाता पेपर यहां और ऐसे लेके आपको यहाँ से स्टार्ट करता, इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रैटेजीज फॉर द मॉडर्न क्लासरूम। हेलो एवरीवन, आई एम विपिन शर्मा, a resource person, motivational speaker. I am honored to be speaking with you all today about effective teaching strategies as educators. आपने करना था, एक ने कुर्सी पकड़नी थी कि जी मैं तो जाना है, पता नहीं मैं तो कपड़े धोने से कितने फंसा। सो लॉजिक इज व्हाट, उसके साथ आप मिक्स हो जाओ, उसके लेवल पे आ जाओ। देखो मेरी वर्कशॉप में ना 2 काम करने पड़ेंगे, टेंशन, ईगो बाहर। आप बहुत लर्नड हो, आई रिस्पेक्ट यू, लेकिन अब हम एक फैमिली हैं तो हम लोग चुगली भी करेंगे। जो मजा चुगली में है वो सत्संग में नहीं है, याद करना। अब सत्संग कर लो, कोई नहीं सुनता, किस दी पता कल की होया जी, अग्रवाल मैम जा रहे थे, हाँ 10 तो उसका एक मजा ही अलग है। जो मजा चुगली में है वो सत्संग में नहीं। तो उसके साथ आप कनेक्ट करो ग्रेजुअली। अच्छा चल इसको हम ये देखिए, ए है ना, ए जानती, ए यस, PPLA खाया। धीरे धीरे वो आपके कलर में आ जाएगा। एक्चुअली एक क्वेश्चन मेरे को बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा हर वर्कशॉप में, तो मैं देखता हूं वो क्वेश्चन यहां भी है कि नहीं। तो आई होप आई ट्राइड टू आंसर योर प्रॉब्लम। करके देखना 40 दिन, ये रोज करना, 41वें दिन आपको राहु फल दे देगा। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू। सिंपल सा टोटका है, ज्यादा नहीं, लाल किताब के। आइए कुछ सर पूछना ये है? टोटका तो ऑलरेडी किया हुआ है हमने। अच्छा ये वाला, हाँ जी, फिर भी क्योंकि फेल है? जैसे क्लास में जितने भी बच्चे हैं ना, हाँ। हमें होता है कि हमारा रिजल्ट 100% आना चाहिए, तो वो हमें मिलता नहीं हुआ, फिर हम सेटिस्फाई नहीं होते। एक बात पूछूं आपसे, यस मैं अभी सुबह आ रहा था, आई वॉज कमिंग, तो मेरे को भी रील बनाने की आदत है, तो मैंने खेत पे डाला, मैंने कहा ये 10 एकड़ की लैंड है, ठीक है, किसी लैंडलॉर्ड की, और उसके बच्चा स्कूल में जा रहा है पढ़ने, जिसको 10,000 20,000 की नौकरी की ट्रेनिंग मिलेगी जब तक वो स्कूल में रहेगा। ये कम से कम 25-30 करोड़ की लैंड है, और उसको जॉनी यस पापा करके हमने क्या कर दिया। बाद में फिर वो क्या बोलेगा कि पापा 2 एकड़ बेच, मैं जाना कनाडा या मैक्सिको दी दीवार टप के उधर जाऊंगा, फिर मैं बाय एयर पैसे खर्च के जाऊंगा, उधरों फ्री आऊंगा डिपोर्ट होके। मतलब मैम एक्चुअली क्या है, आपने ये फॉर्मूला लगा दिया ना। अब एक बच्चे की माँ बोलती सर मेरी एक बड़ी प्रॉब्लम है, क्या, मेरा बेटा ना एक ही रोटी खाता है। मैंने कहा फिर, कहती मैंने इसको खिलानी है। मैं कितनी, कहती 2, क्या करूं? मैं कहा पेड़ा डबल करके रोटी के खिला दे। तो क्वांटिटी ऑफ आटा इज डबल, रोटी इज 1, तुम भी खुश वो भी खुश। सेम इज द केस हियर, यू ट्राई 1, यू ट्राई अनदर 1। टीचर क्या होता है बताएंगे आप? एनीबडी हु विल टेल व्हाट इज टीचर? मैं बताऊं? हाँ जी आइए प्लीज, आइए प्लीज मैम। एक मिनट पकड़ाना जरा इनको। गॉड ब्लेस यू मैम, गॉड ब्लेस यू। यस, पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, यस सर। वर्कशॉप कैसी लग रही है? बहुत अच्छी, मजा आ रहा है। मैंने हाफ डे जाना था, अभी बैठी हूँ। नागपाल साहब
she has to leave in half day, but she will attend full day now. Thank you. The credit goes to Amit Nagpal, जो मेरी आई थिंक 20th वर्कशॉप करवा रहे हैं. हम इनको ऑनर करेंगे स्पेशली जब 25th होगी. ठीक. So please introduce honorable teacher. Good morning, everyone. My name is Meena from MHR Happy Nursery School, and then I will start MHR Public School last 1 year. जी मैम. Yes, sir. आप टीचर के बारे में कुछ बताना चाह रहे थे. National builder है. हाँ जी. Great, motivated to the students. Very good. Very good. Everything students के लिए everything teachers. Yes. वो कहते ना माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, जिसने नहीं देखा तुझे कभी, ठीक है ना, तो उसने भगवान को भी नहीं देखा. तो माँ, मदर टीचर्स एंड टीचर्स रियली ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑलमाइटी. आप यहाँ आके कर सकते हैं रिकॉर्ड, यहाँ से तो इतना बढ़िया शॉट नहीं आएगा. ठीक. एक बार और कहना चाहूँगी सर, मेरे टीचर खुद वो 75 अबव ही होंगे. तो एक दिन क्या हुआ, उन्हें काफ़ी देर पहले मतलब जेवियर में उनका भी पोता पढ़ता है और मेरा भी बेटा था, तो उन्होंने मतलब मिल लिया एक बार, उनको पता चल गया ये एमएचआर में पढ़ाते हैं. तो उन्होंने क्या किया कि इधर मेन स्कूल में गए, पहले कहते यहाँ पे एक मीना मैम है, कहते मैं मुझे तो पता नहीं. फिर वो दूसरे गेट पे गए, फिर उस पे आए, फिर इधर गेट पे आए, कहते पूछ लेते हैं एक मीना मैम इधर 1 साल से इधर हैं, पहले वो हैप्पी हाई में थे शायद वही होंगे. तो वो आई तो सारे पीएम सारे हैरान, कहते एक वो कह रहे हैं कि मैं उनकी मतलब टीचर हूँ, मैंने उनसे मिलना है. तो बड़े हैरान हुए, कहते आपके टीचर आपसे मिलने, वो भी 75 इयर्स अबव हैं. तो मुझे बहुत प्राउड हुआ इस बात पे. वो 75 साल की उम्र में भी वो आपको याद रखे हुए हैं, इसका मतलब आप बहुत बढ़िया स्टूडेंट रहे हैं. यस सर. है ना? Am I right? यस सर. मीना मैम जी सही बोला आपने. एंड तो कोई और क्वेश्चन? चलो मैं बताता हूं एक क्वेश्चन का. 2 क्वेश्चन है. तो पहले टीचर कौन होता है? टीचर वो होता है जिसको पहले तो मैनेजमेंट बुलाए कि सपोज मैं टीचर हूं, विपिन सर, हाँ जी आप ना जी बच्चों से बातें बहुत करते हो, थोड़ा कंट्रोल करो. ठीक है जी. मैं अब आपका नाम नहीं किसी लूंगा, आपको पर्सनल लगेगा इसलिए मैं अपने ऊपर ही लेता हूं. आप ना सर बच्चों से बहुत दोस्ती रखते हो, परसों आपने चॉकलेट बांट दिए. हाँ जी गलत है सर. ठीक है जी, आगे से नहीं बांटना. ओके जी. अच्छा, उसके बाद फिर प्रिंसिपल बुला लिया. सर हाँ जी सर आपका सिलेबस बहुत पीछे जा रहा है. सर मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रही है सर, मैं पेपर कैसे बनाऊं? आपको 4 चैप्टर दिए थे, आपने 2 ही करवाए हैं. हाँ जी मैम कोई ना, तो मैं एक्स्ट्रा टाइम. सर एक्स्ट्रा टाइम में कैसे होगा? सर अब मुझे पेपर 2 से आप कम से कम तीसरा करवा दोगे कंप्लीट? हाँ करवा दोगे. ठीक है चलो. उसके बाद गर्दन मारो ऐसे ऐसे. फिर कोऑर्डिनेटर से ना सबकी अजीब सी अलग खुन्नस होती है कि हमारी जैसी तो है ये कोऑर्डिनेटर, ज्यादा हीरोइन बनती है या हीरो बनता है. अच्छा, फिर कोऑर्डिनेटर को बुला लिया. कोऑर्डिनेटर ने, मैडम पता क्या है मेरे को तो ऊपर से बोल रहे हैं, मैं क्या करूँ अब, ये मेरे को तो अब मैं तो कभी नहीं चाहती, आप कुछ कर दो ना आप. चलो ठीक है. अच्छा, अगर तो कोऑर्डिनेटर हम्बल है तो ऐसे, अगर कोऑर्डिनेटर कई बार कोऑर्डिनेटर प्रिंसिपल से भी 10 गुना ऊपर होती है, मैडम ये नहीं सही. अच्छा, गर्दन मारी, हाँ हाँ किया, एमडी ने बोला यस, प्रिंसिपल ने बोला यस सर, कोऑर्डिनेटर ने बोला यस सर, जैसे बाहर निकले कमरे में करना ये जो सोचा. वो टीचर है, वो टीचर जिसको कोई रिसोर्स पर्सन, कोई मैं कहता हूं नेशनल अवार्डी हो, चाहे स्टेट अवार्डी हो, चाहे सरपंच अवार्डी होगा तो होएगा नेशनल अवार्डी अपने घर में होएगा. मैं तो घट है तो मतलब वो मतलब क्या है. अच्छा, फिर एक और पंगा है. जैसे प्रिंसिपल के रूम में ये सब कुछ चला तो वहां पर अंदर पहले सपोज करो गुरजीत मैम बैठे थे, तो जैसे ही मैं अंदर गया और गुरजीत मैम बाहर निकले, ये चलो अमित सर बैठे थे,
जैसे ही मैं अंदर गया, अमित सर बाहर निकले, अमित सर ने मुझे एक स्माइल सी मारी, तो मैंने सोचा मैं भी, फिर मैं जब मैंने इस सारा कुछ एक्सपीरियंस किया, मैं कहा पक्का अमित नागपाल ने अग लगाई है। तो वहां से एक कोल्ड वार स्टार्ट हो जाती है, और अमित नागपाल ने तो कुछ बात ही नहीं की, वो अपनी कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करके गए हैं। तो इट हैपेंस। सर बात हो रही होती है कि बाहर अंदर गए हैं, बात है कोई, आज अंदर बुलाया ऑफिस में, कोई बात है। एक बात बोलूं आपको, ये सबका प्रोटोकॉल है, सब जगह एक जैसा होता है। मैं अब आपको बोलूं कि 2.5 लाख से ऊपर स्टूडेंट्स को मिल चुका हूं, टीचर्स काउंट करूंगा कितने मिल चुका हूं, तो मेरा लॉजिक ये है कि हम सब एक से हैं, एंड हम सबका एक सी प्रॉब्लम है। बस मैं परमात्मा को यही बोलता हूं कि हमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पेड कर दो। मोदी जी कुछ ऐसी पॉलिसी लगाओ कि इंडिया, मैं कहता हूं, हम तो बोलेंगे वर्ल्ड की फर्स्ट इकोनॉमी है, बट टीचर्स को दे दो कुछ, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है ना, तो मजा है। फिर देखो टीचर और फिर टीचर और चंद्रयान क्या, मंगल के ऊपर क्या, हम तो सूरज के ऊपर भी लैंड कर जाएंगे। सो एक तो टीचर की डेफिनेशन ये है, लेकिन टीचर मैंने क्या बनाया, हर टीचर के अंदर एक स्टूडेंट होता है। जब वो क्लास में पढ़ाने जाता है तो वास्तव में वो अपने अंदर के स्टूडेंट को पढ़ा रहा होता है। अगर वो अंदर का स्टूडेंट बाहर के स्टूडेंट से मैच कर गया तो वो गजब टीचर है, अदरवाइज वो टीचर बेकार है। सो ए गुड टीचर इज ऑलवेज अ गुड स्टूडेंट। और कभी कभी स्टूडेंट हमारे अंदर ही होता है, हम बेसिकली अपने अंदर के स्टूडेंट को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। मेरी तो डेफिनेशन यही है। बाकी आप जो मर्जी बोल दो, वो व्हाट्सएप पे अब मिल जाएगा आपको, इंस्टा पे भी मिल जाएगा। ये जो हमारा कंटेंट है ये कहीं नहीं मिलेगा, MHR का ही कंटेंट है, ये बठिंडा वालों का कंटेंट है। इस सोडे लवे तो आया है, इस सोडे लवे ही जाएगा। आई थिंक आई एम स्पीकिंग द लैंग्वेज ऑफ बठिंडा। Okay. My first student who tops in medical, she was from Bathinda, Lara Mohabbat, Dr. Ruchi Jandal. Yeah, clap for this land. And my another student who tops in IIT, Navjot Kaur, Rattiya se thi wo, somewhere here only. Yes. तो God bless you dear teachers. अब आपका एक कॉमन क्वेश्चन है प्राइमरी टीचर्स का, जो मेरे को पूछा गया है। सर, कुछ बच्चे स्लो लर्नर होते हैं, कुछ फास्ट लर्नर होते हैं, उनका हम कैसे इफेक्टिव टीचिंग से प्रॉब्लम को सॉल्व करें? दैट इज ए क्वेश्चन जो, देखो मैंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछना, आपने पूछना है, लेकिन ये क्वेश्चन मुझे बहुत वर्कशॉप्स में पूछा। बट ये सर माइक रियल भी है सर, इधर आता है। ये सभी क्लासेस में मिलेंगे सर आपको ऐसे स्टूडेंट्स, इवन के क्लासेस में क्या प्रोफेशन में भी मिलेंगे। हाँ हाँ, कंटिन्यू प्लीज, अब बोलिए ना मैम। एक्चुअली सर अगर स्टूडेंट स्लो है लर्नर तो आज जिस भी प्रोफेशन में जाएगा, जरूरी नहीं है कि सभी होते हैं, बट मैक्सिमम होते हैं वो स्लो ही रहते हैं। हम चाहते हैं कि वो स्लो ना रहें। आप चाहते हैं ना स्लो रहें। अब स्कूल वाले को बोलो ये स्लो लर्नर है, तो मैनेजमेंट बोलेगी इसको एक्स्ट्रा टाइम दो। और मैं अपनी बात बताता हूं, मुझे कोई क्लास में बैठा के बोले कि स्कूल में बच्चे यूनिफॉर्म खेल रहे हैं हाफ टाइम में, और मेरे को मैम बुला के पढ़ा रही है, मुझे मैम कम ताड़का ज्यादा दिखेगी। मैं कहूंगा मैम, अंदर से गालियां मार रहा हूं, मैम भी फंसी हुई है, देखते करके मेरी छुट्टी भी बर्बाद हो रही है। अब इसका सोल्यूशन मैं देता हूं आपको। मैं इंडिया का पहला टीचर हूं जो, मैम थोड़ा जोर से बोलते हमको भी सुन जाता है। ओह यस प्लीज, सुख है? अच्छा, ठीक। मैंने कहा कहीं वो अभी अमित नागपाल ने कोई ऐसा तो नहीं। ओके, गॉड ब्लेस यू। नाउ आई एम टेलिंग यू समथिंग। मैं टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करता हूं। कि लोग एक जगह मुझे लेक्चर के लिए बुलाया गया कि मोबाइल के विरुद्ध बोलना है,
पहले मैं चुप रहा, पहले प्रिंसिपल ने मोबाइल की ये धज्जियाँ उड़ाई, फिर एक और बंदे ने धज्जियाँ उड़ाई, फिर और ने उड़ाई, फिर मेरी बारी आई। तो जब मैं लेक्चर दे रहा था, जितने लोगों ने मोबाइल की धज्जियाँ उड़ाई है वो लगातार मोबाइल पे चैट मार रहे थे। मोबाइल को मैं एक दिन मिल गया, मैं कहा हेलो मोबाइल कैसा है तू? कहता है यार ठीक हूँ। तो मैंने कहा यार क्या प्रॉब्लम है? कहता मैं बहुत नाराज हूँ। कहता मैं किसी को बोलता हूँ कि आप व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या स्पॉटिफाई पे ये देखो वो देखो? मैं तो नहीं बोलता। मैं कहा मैंने कभी बोला है कि आप मेरे को देख, मेरा स्क्रीन आवर्स बढ़ा दो? मेरे भी तो परेशानी होती है, आप छुप के भी देख रहे हो, इधर भी देख रहे हो, उधर भी देख रहे हो। यस, मैंने तो नहीं कभी बोला, तो मेरे को क्यों गालियां मारते हो? बेसिकली हमें खुद को कंडीशन करना है कि हमें मोबाइल को किस तरह से यूज करना है। एक लड़का झज्जर हरियाणा से, उसका डैड दूध का काम करता है। कोविड में ऑनलाइन क्लासेस हुई तो उसके पापा ने उसको सैमसंग का टैब ले दिया, और जब सैमसंग का टैब लेके दिया तो वो बच्चे ने यूट्यूब से कोडिंग सीखी, उसने एप्लीकेशंस बनाई। 16 साल की उम्र में उसकी 12 करोड़ की टर्नओवर है। अमेजिंग। आज तक पे ये स्टोरी भी आई है। ठीक है, तो मोबाइल तो बुरा नहीं है। अब सारे गामा पादा निसा सा नि धा पा मा गा रे सा, ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। चाहे आप गंदी गाली निकाल दो, लगेंगे तो सारे गामा पादा नहीं सही। चाहे आप गायत्री जाप कर दो, लगेंगे तो सारे गामा पादा नहीं सही। तो हमें खुद को कंडीशन करना है ना, हमें खुद को कंडीशन करना है। तो वो कंडीशन करके आप अपने सिलेबस के यूट्यूब पे लेक्चर्स डालो, और बच्चे को नहीं बताना, बच्चे की मां को बताना है। इफ वी टीच अ मदर, वी टीच द एंटायर फैमिली। अगर हम एक मां को पढ़ा देते हैं तो पूरा परिवार पढ़ जाता है ना? यस सर, ये तो हम जैसे मेरे लास्ट स्कूल था मेरा कार्मल कॉन्वेंट स्कूल, आईसीएसई स्कूल, वहाँ से मैंने माउंट कार्मल किया है, होशियारपुर एंड चंडीगढ़ दोनों। तो मैंने वहाँ से ही शुरू कर दी थी ये जर्नी। तो मदर्स को टीच करने की, मतलब जब पीटीएम होती है तो भारद्वाज मैम, यस सर, भारद्वाज आर ऑलवेज ग्रेट पीपल। अमित सर भी जानते हैं, कार्मल में अमित सर भी आते थे वहाँ पे, पुराने ही जानते वो भी मुझे। तो सर वहाँ पे मैंने क्या किया कि वहाँ पे सर फॉरनर थे, स्टीव सर थे, तो उन्होंने बोला कि माउंट कार्मल कौन सा है? अच्छा, बठिंडा में था। तो उन्होंने बोला कि आपने बच्चों के साथ फ्रेंडली बिहेव करना है। जैसे वहाँ पे तो सर भी हमारे साथ खुद खेलते थे, इवन कि हमारे टीचर्स की भी वहाँ पे स्पोर्ट्स गेम होती थी। तो सर ये कहते थे 2 घंटे आपने पहले खेल लो, एंजॉय करो, फिर उसके बाद आपने अपना काम करना, जो काम आप 2 घंटे में करोगे 1 घंटे में कर दोगे। तो वही पॉलिसी मैं यहाँ पे करती हूँ। जैसे मेरे बच्चे हैं तो मैं सर के पास जाती हूँ, मैम के पास जाती हूँ कि हमने पहले खेलना है बच्चों के साथ। जो बच्चे नहीं कर रहे फिर मैं उनको कन्वेंस करती हूँ कि आपको एक पीरियड में गेम पीरियड लेके जाऊँगी, अगर आप ये काम करोगे तो मेरा ये लगा लो कि हम बच्चों को रिश्वत देते हैं, जैसे भी है, पर पढ़ने के लिए दे रहे हैं, खेलने के लिए दे रहे हैं। रिश्वत नहीं बोलते उसको, इंसेंटिव बोलते हैं। इंसेंटिव दे रहे हैं, यस, डिग्निफाइड वर्ड। तो तब बच्चे सर करते हैं, पॉजिटिव वेव्स आती है बच्चों से भी हमें आती हैं। और टीचर्स मदर्स का क्या होता है, जब पीटीएम में मदर्स आती है तो मैं उनको बोलती हूँ, जैसे मदर्स मैम हमें तो आता ही नहीं, हम कैसे कराएं, हम तो ट्यूशन लगा रखा है बच्चों को। नहीं, मैंने कहा जब आपके पास फ़ोन है या मुझे कॉल करो, मैं आपकी कॉल अटेंड करूंगी। फ़ोन क्या जो आप बच्चों को राइम्स लगा के देते हो या गाने लगा के देते हो या रील्स लगाते हो, रील्स बंद कर दो। जैसे वेजिटेबल्स नेम है, फ्रूट्स नेम है, हमारा सिलेबस है, तो विद पिक्चर बच्चों को लगा के दो उनके नेम, उनको रैको भी हो जाएगी। अगर आप जो भी सब्जी बना रहे हो घर पे, फ्रूट्स लेके आ रहे हो, तो खुद भी उसका नाम देखो, फ़ोन पे सर्च करो, फिर बच्चों को भी बताओ, जिससे वो अच्छा उनकी कैचिंग पावर होती है, पिक करते हैं बच्चे अच्छे से, और वो लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे। करेक्ट। मैं आपसे एग्री करता हूँ, और ये बहुत बढ़िया है जैसे आपस में मिक्सअप होके खेलना एंड सो ऑन। क्योंकि हमारे पास क्या होता है कि एक ही स्कूल में डिफरेंट जनरेशन्स के लोग होते हैं, तो कई लोग इंटरनेट को बहुत अगेंस्ट हैं कि इससे ये होगा वो होगा,
मैं पेरेंट्स को बोलता हूं कि एक बड़ी सी स्क्रीन लगाइए, उसके साथ आप डेस्कटॉप अटैच कीजिए, ऐसे ही एक ट्राइपॉड पे कैमरा लगा हो, और जो बड़ी स्क्रीन है उसके लेफ्ट राइट में स्पीकर्स भी होते हैं, उसके सामने एक टेबल चेयर स्कूल जैसा हो, और अपने बच्चे को बोलो तुम यहाँ से पढ़ो यूट्यूब से, और वो क्या देख रहा है वो आपको भी दिख रहा है। यानी कि देखो हम टीचर्स तो हैं ही हैं, हम पेरेंट्स भी तो है ना, ये 2 in 1 सेशन हो रहा है, पेरेंटिंग भी होगी। तो वो बच्चा वहां से पढ़ेगा, माउस उसके हाथ में, रिमोट वाला पॉज कर देगा, नोट्स बनाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो मैंने नोटिस की है, बच्चे लिखते ही नहीं है, यस सर, राइटिंग की हैबिट ही नहीं है, वो बने हुए हैं रोबो चिट्टी ऐसे देखा, और वो पैम्पर्ड इतने हैं। अभी आप मतलब मैं गवर्नमेंट को बोलता हूं कि सरकार एक ऐसी पॉलिसी लाए कि माँ बाप किसी एक टीचर को एफिडेविट दे दे कि टीचर ये आप इसको जो मर्जी करो, हम कभी कंप्लेंट नहीं करेंगे। फिर देखो बच्चा कैसे सुधरता है। कभी आज तक किसी वर्कशॉप में किसी ने बोला ये? मेरे लिए तो ताली बजा दो फिर। आई रिपीट, द गवर्नमेंट must adopt or pass a resolution that parents should give a consent to one of the selected teachers or teachers that you are given a free hand. आइए प्लीज, मैं आइए प्लीज। हम तो आप बहुत बोलते हैं सर, यहाँ पेरेंट्स आते हैं, मेरे बच्चे को हाथ नहीं लगाना, कुछ कहना नहीं, मेरे कुछ कहना नहीं, जितना करता है बस। और हम एज अ मदर अपने स्कूल में जाते हैं बच्चों को, तो हम यही कह के आते हैं एक की जगह 2 थप्पड़ लगाओ और पढ़ाओ बच्चे को, हमें रिजल्ट चाहिए। क्या बात है मैम, प्लीज देखिए मुझे कितना अच्छा लगता है, शी वॉक्स इन हर सेल्फ, ऐसे आप उठ के आएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। यस प्लीज। Myself is Neelam, TGT teacher from this school, MHR Public School, CBSE Bathinda. I am in teaching lines since 2007. There are 18 years. सर मैं तो सिर्फ आपकी वही बात का जो आंसर देने आई हूँ कि आपने कहा है कि गवर्नमेंट को ये कर देना चाहिए कि टीचर को एफिडेविट दे दे तो बच्चा चलेगा। ये बात मैंने अपनी पीटीएम में बहुत बार पेरेंट्स को बोला है। पेरेंट्स जब बच्चों के कम मार्क्स देखते हैं तो पेरेंट्स एक बात कहते हैं, मैडम इसको खींच के रखो। हम कहते हैं खींचना क्या होता है, हमें सिखाओ खींचा कैसे जाता है बच्चा। तो खींचा तो मार के ही जाएगा, उसको डांट के ही जाएगा, उस बात का आप बुरा मना लेते हो। या तो आप हमें लिख के दे जाओ कि हम कुछ नहीं कहेंगे, आप हमारे बच्चे के साथ जैसे मर्जी बिहेव करो, फिर हम आपके बच्चे के मार्क्स जो हैं वो ला सकते हैं। रिटर्न तो कोई देता ही नहीं है। इस बात को बोल के सभी टीचर्स जाते, पेरेंट्स जाते हैं पीटीएम पे कि आप इसको जैसे मर्जी करो, आप इसको जैसे मर्जी पढ़ाओ, इसको खींचो, इसको और खींचो। हमने कहा ऐसे हमारे पास कोई चीज़ तो है नहीं कि इसको पकड़ के खींच दे। ठीक है, हमारे खींचने का हमारे पास एक ही मेथड है कि आप हमें रिटर्न दे दो, फिर खींचेंगे हम। मेरा ये दांत है ना मैम, यहाँ से हल्का टूटा हुआ अभी भी। ओके वैसे मेरे 32 कंप्लीट है, यहाँ से टूटा हुआ। मैंने मेरी मॉर्निंग असेंबली में पिटाई हुई थी और पढ़ाई के पीछे नहीं हुई थी। हुआ क्या था कि एक मास्टर जी ने मुझे कुछ बोला, तो मैंने उस वक्त मोपड़ होती थी हीरो मैजेस्टिक, तो मैंने पंचर कर दी। तो वो चपरासी ने देख लिया कि इसने कंपास मारी है, तो मेरी अगले दिन ज़बरदस्त पिटाई हुई। और घर जब पता लगा कि मॉर्निंग असेंबली में पिटाई हुई है, तो मेरे को लगा कि मेरे पेरेंट्स मुझे फेवर करेंगे, उन्होंने और पीट दिया। तो आज की डेट में जब से ये पॉलिसी, देखो उस वक्त कुछ टीचर्स ने जुर्म भी किए तभी ये रेजोल्यूशन पास हुआ, लेकिन ये है कि हर टीचर जो ऐसा नहीं होता, कुछ बच्चों के फायदे के लिए भी पीटता है। आप रोड सेंस देखो, रोड सेंस देखो, 2 व्हीलर से लेके थार तक हमारे पंजाब में कैसे चलाते हैं सड़क पे, बहुत केयरलेसनेस, उनको डर ही नहीं। और वही जो बच्चे हैं जिनको डर नहीं है, पेरेंट्स के आगे बोलते हैं, ठीक है, फिर वो सिर पकड़ के बैठते हैं। अगर उसकी अच्छे से सेवा हो, हमारे मदर क्या करते थे, गलती पकड़ी,
ऐसे करते थे, ऐसे आंखों से, मतलब वॉशरूम चलो, वॉशरूम में जाके कुंडी लगा के पिटाई होती थी, है ना। आज की डेट में एवरी चाइल्ड इज स्पेशल, मेरे बच्चे को यहां अगर उंगली छप जाए, ठीक है, यहां अगर उंगली छप जाए तो फटाफट फोटो खींच के व्हाट्सएप ग्रुप में खूंखार अध्यापक, और अगले दिन स्कूल में हल्ला। तो वो टीचर बोलता है मुझे क्या लेना भाई, मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूं। अब कई बार पुलिस ऑफिसर रोक लेते हैं बच्चों को, तो वो पता क्या बोलते हैं पुलिस ऑफिसर को, जानता मैं कौन है, मैं एसएसपी साहब, गल करा गल करा। पुलिस ऑफिसर बोलता तूने हेलमेट नहीं पहना, तुम्हारे को एसएसपी साहब क्या, तुमको प्राइम मिनिस्टर साहब जानते हैं, लेकिन जब तेरा सिर फटेगा वहां पर लिखा जाएगा कि तेरे को प्राइम मिनिस्टर साहब जानते हैं, सिर कम मना फट। तो इट मींस दैट वो पैम्पर्ड चिल्ड्रन जो है उनको हम कैसे हैंडल करें, ये एक बहुत बड़ी चैलेंज है। इसलिए जो पेरेंट्स आपके कॉन्फिडेंस में आते हैं कि देखो पंजाबी च गल करो, जे तो बनाना बंदा तो मैनू दे दो पावर, फिर पंगा मेरे नाल ना गल करियो आके, ठीक है। जे मैं अपनी बच्चे को गाड़ी में छोड़ के आना, गाड़ी में लेके आना, गाड़ी में छोड़ना, गाड़ी में लेके आया, वहां एक राधेश्याम परदेसी सर थे, मैंने कहते गल सुन इधर आ, मैं कहा तेरे को ज्यादा पैसे हैं, तो ज्यादा हीरो बनदा, मैं की हो गया, इसनू बस च भेज। कहता लाड नहीं करना, बच्चे को स्ट्रिक्ट स्ट्रांग बना। सेम इज द केस, ये प्रॉब्लम बहुत सीरियस है और आने वाले टाइम में ये बहुत खतरनाक रूप लेगी अगर इस पे पॉलिसी अडॉप्ट ना की गई। लेकिन हर पेरेंट्स अब्राहम लिंकन की तरह होने चाहिए। उन्होंने अपने सन के टीचर को लेटर लिखा था कि मेरे बच्चे को आपने कैसे बनाना है। वाह वाह। और आज की डेट में बोलता है कि मेरा बच्चा बच्चा मेरे अकॉर्डिंग बनना चाहिए। अगर आपके अकॉर्डिंग, पेरेंट्स के अकॉर्डिंग बच्चा बनना चाहिए तो फिर टीचर्स के पास भेजा ही क्यों है? बच्चे को घर में ही रखा जाए, उसको अपनी तरह पॉलिश करो, उसको जैसे बनाना चाहते हो। और आज का बच्चा कहता है कि मैं फलाने वाला सिंगर बनूंगा, मैं टिमके वाली सिंगर बनूंगी और मैं रीला बनाऊंगी और मैं वहां से बहुत पैसा कमाऊंगी। ये गलत है। ये बच्चों को, पेरेंट्स को सिखाओ कि यूट्यूब या इंस्टाग्राम, फेसबुक कोई पैसे नहीं देती और आप एक मोरल को भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, सोसाइटी को भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में कोई नहीं बताता, गुरु तेग बहादुर जी के बारे में कोई नहीं बताता, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कोई नहीं बताता, ठीक है ना। वो खत्म ही हो गया सब कुछ। मैं इतनी वर्कशॉप ली, मैंने पूछा वीर बाल दिवस क्यों मनाते हैं, किसी को नहीं पता। जब मैंने बताया कि वीर बाल दिवस 4 साहिबजादों की शहादत के वजह से पूरे इंडिया में छुट्टी होती है उनको, तो कोई लॉजिक नहीं है, भाई छुट्टी होनी चाहिए। मतलब ये नालायकी हमारी भी है, पेरेंट्स की भी है। लेकिन क्यों ना हम एक शुरुआत MHR बठिंडा से करें कि भाई पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लो कि जी जे तो बच्चे ने बनाना है, फिर तो भैन जी मैनू दे दो फ्री हाथ, नहीं तो फिर चलो तो मैनू लांबा ना दियो, जो आंदा आन दो। सर सभी पेरेंट्स दोगले हैं। सभी पेरेंट्स ऐसे होते हैं, ऑफिस में कुछ बोलते हैं। आजकल आप खुफिया कैमरा रखा करो, रिकॉर्डिंग करो। यस। तो मैम एनी क्वेश्चन आप मुझसे पूछना चाहते हैं? नो सर, बस वही क्वेश्चन है सबके कि जो स्लो लर्नर को फास्ट लर्नर कैसे करें, उसका तरीका। सर हमने बहुत सारे रिसोर्सेज भी अपना लिए, बहुत सारे रिसोर्स पर्सन भी सुन लिए। हम भी एक लाइक रिसोर्स पर्सन की तरह ही हो गए। 20 ईयर से हम टीचिंग कर रहे हैं। मैम आपको तो, आपसे तो सीख रहा हूं मैं। तो सर मैं तो ये कह रही हूँ कि हमने न्यू टेक्निक्स एवरीथिंग मतलब क्लास में अपना के देख लिया है, लेकिन उस चीज़ का क्या सोल्यूशन हो सकता है कि बच्चों को किसी भी उन चीज़ों में इंटरेस्ट ही नहीं है जो टीचर सिखा रहा है। देयर इज अ लैक ऑफ इंटरेस्ट। सूरा सोई सराहिए लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कटमरे कबू न छोड़े खेत। हमने अपनी आदत नहीं बदलनी, हमने लगे रहना है, लगे रहना है। वो बिच्छू डंक मारता है, वो कहता उसका स्वभाव, मैंने उसको बचाना, संत जी बोलते हैं मेरा स्वभाव। तो आप अपने आप को चेंज हम नहीं करेंगे, वो सुबह कभी तो आएगी। आप एक बच्चे को बदल गए तो आप जिंदगी बदल गए। यहाँ इतने टीचर्स हैं, सब विद्वान हैं, किसी एक ने भी कुछ समझ के फॉलो कर लिया तो ये वर्कशॉप का पर्पस सॉल्व हो गया। अदरवाइज तो ये वो क्या टीवी में तभी तो दिखाता नहीं हूँ। अगर मैं दिखाता 1 घंटा वही चलता रहता। आप सोते कि नहीं? मेरे को तो नींद आती। और यहाँ सभी इंटरेक्ट कर रहे हैं तो हमारी प्रॉब्लम्स निकल के आ रही हैं। तो मैं आपको सोल्यूशन दे रहा हूं कि आप यूट्यूब चैनल बनाएं, इंस्टाग्राम रील बनाएं एजुकेशन की,
और वो स्क्रॉल हो। पेरेंट्स को बोलो कि देखो मैंने सारा सिलेबस बुक में डाल दिया है यूट्यूब पे, आप इसको देखो, स्टडी करो, जहां दिक्कत आए मुझसे बात करो। नहीं तो फिर दूसरा ऑप्शन पता क्या देने वाला था, बहुत टफ है वो, ऑनलाइन फ्री पढ़ाओ वीकेंड पे। जो बच्चे ये भी कर सकते हैं हम लोग, अगर आपके पास समय है तो, कि जो बच्चे वीक हैं वो, अब पता क्या होता है मैं आपको बताता हूं। छोटा बच्चा ना, वो आपके साथ उसकी कैसी कनेक्शन है वही उसकी मम्मी का कनेक्शन है। अगर छोटा बच्चा आपके साथ बॉन्ड बना के बैठा है तो उसकी मम्मी पीटीएम पे आके बोलेगी, मैडम कैसे हैं आप, बढ़िया, मैडम सूट बड़ा अच्छा बनाया आपने, कहां से लिया, चली गई। अगर उसकी बॉन्डिंग नहीं है, मैडम थोड़ी जी बहुत प्रॉब्लम आ रही है, मेरे बच्चा तो थोड़ा देख के डरता है, तो कहना मैडम बहुत मार दिया, उसको मैं तो कभी हाथ नहीं लगाया इसको, वैसे भी कॉर्पोरल पनिशमेंट तो है ही नहीं। मतलब क्या है, यू हैव टू मेक बॉन्डिंग छोटे बच्चों में विद द मदर्स, यू टीच देम। जैसे अभी जितनी बनेगी पीटीएम उतनी सुखी रहेगी। पीटीएम जो है ना बेसिकली वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, उसमें कई बार तो क्लेश भी पड़ता है, इसलिए कई हाइपर होके आते हैं। तो आप ना बॉन्डिंग पेरेंट्स के साथ, मदर्स के साथ बनाओ। और मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, टीचर में एक स्वैग होना चाहिए। मतलब सर टीचर पूरी लाइफ बॉन्डिंग ही करता रहे, कभी स्टूडेंट्स के साथ, कभी पेरेंट्स के साथ, कभी प्रिंसिपल के साथ, कभी कोऑर्डिनेटर के साथ, एक बॉन्डिंग की लाइफ है। ये टीचर बनना नहीं आसान, ये आग का दरिया है डूब के जाना। तो मैम सच कह रहा हूं कि टीचर का देन तो कोई नहीं दे सकता, तभी तो वो कहते हैं ना, भी प्रभु भी बोलता है कि मैं टीचर के आगे नतमस्तक हूं। तो गुरु ही होता है जो अंधकार से प्रकाश में लेके जाता है। तो स्लो लर्नर के लिए इफेक्टिव टेक्नोलॉजी यूज की जाए तो वो बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट रहेगा मेरी नजर में, क्योंकि पहले ये चीज नहीं थी। एकलव्य ने खाली स्टेचू बना के अर्जुन से बेटर ट्रेनिंग ले ली थी, तो आजकल तो एक से एक द्रोणाचार्य यूट्यूब पे पड़े हैं। बिल्कुल सर। मैं ये जो कह रहा हूं ना, जो बहुत पढ़ने वाले बच्चे हैं वो बड़ी बड़ी रिनाउंड कोचिंग में से 2 महीने बाद छोड़ के वापस आ जाते हैं कि मम्मा जो वो पढ़ा रहे हैं ना वो यूट्यूब से चोरी करके पढ़ा रहे हैं, मैं तो घर में ही पढ़ूंगा यूट्यूब से। सर ऐसे हैं, सर ऐसे स्टूडेंट्स ने किया है। मेरा ही नॉन एक स्टूडेंट है सर, वो मतलब इकोनॉमिकली काफी वीक थे, तो उन्होंने मतलब कि अपने घर पे स्टडी की है, ऐसे ही कभी फिजिक्स वाला के लेक्चर्स देख लिए, कभी और लेक्चर्स देख लिए, ऐसे लेक्चर देख के उसने आईआईटी में काफी अच्छा रैंक लिया है। मेरे पास भी 6000 बच्चे फ्री पढ़ते हैं, मैं पढ़ाता हूं। और एक जब फ्री शब्द बोलते हैं लोग बड़े खुश हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को आई कैन अफोर्ड, सो हाँ, तो आप उनको मेरे को रेफर कर दो आप। अब मैंने एक और बेड़ा उठाया, मैंने 9th and 10th को शुरू किया है, 11th 12th हम करते हैं, 9th 10th को शुरू किया सो दैट उनका बेस बने शुरू से, एंड बेस बनेगा। और मेरी बहुत जोवियल क्लासेस होती है, मस्ती वाली होती है। नहीं मैम, मैं तो लाइव सैटरडे संडे, हाँ जी, अप्रैल 15 से करूंगा स्टार्ट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप जितने मर्जी बच्चे, गांव के, स्कूल के, कहीं के भी, फ्री ऑफ कॉस्ट। और दूसरी चीज एक और भी है, कोई कमर्शियल एंगल नहीं है उसमें। जब ऑनलाइन आप पढ़ाते हो ना, खाली आपके पास स्टूडेंट नहीं पढ़ रहा होता, कोने में इधर मम्मी बैठी होती है, इधर पापा बैठे होते हैं, पीछे दादा बैठे होते हैं। जैसे वो मेरा बच्चा अभी आया था, क्या नाम था आपका? अंजलि। जब तुम पढ़ाओगे ना बच्चों को ऑनलाइन, और आपके पापा का नाम सतीश जी, ठीक है, तो जब तुम जाओगे ना, ओए तुम पता हो जरा अपना सतीश उदी कुड़ी कितना बढ़िया पढ़ाती है, यू बिकम ए स्टार। एंड फिर क्या है, दूसरे स्कूल के बच्चे भी आके अंजलि मैम की क्लास लगाएंगे। फिर कई बार आपको बोलेंगे स्कूल में, अंजलि मैम पता है आपकी क्लास में ना दूसरे स्कूल के बच्चे भी आके पढ़ रहे हैं। अच्छा, आप उनको पता क्या बोलोगे, बेटा उनको बता दो, नंबर दे दो, आधार कार्ड की कॉपी भेज देना, मैं लिंक भेज दूंगी। क्या होगा, अंजलि मैम स्टार, MHR में एडमिशन आएगी ऑन द बिहाफ ऑफ अंजलि मैम। उसके बाद तुम बोलना कि मैंने अकल से आना नहीं है, तो अश्विनी सर बोलेंगे क्या बात होगी मैडम, क्या बात होगी। वेल मैम सर मेरे को थोड़ा हायर मिल रहा है। मैडम आपकी सैलरी बढ़ा दी, किसी को मत बताना। जब आपके अंदर अट्रैक्शन होगी तो आपकी वैल्यू हर जगह होगी।
वो आपने खुद बनानी है यार। मैं आपको एक ही सलाह दूं, जिंदगी में किसी की सलाह मत लो। सही बात है, बिल्कुल सही। खुद डिसाइड करो। हम इतने बेवकूफ थोड़ी हैं भी मैं किसी से पूछूं कि मैं वर्कशॉप पे जाके क्या बोलूं। कई बंदे ना बोलते यार वर्कशॉप, प्रिंसिपल साहब वर्कशॉप में मैं क्या क्या बोलूं। बोलता यार क्या आदमी है तू, तूने वर्कशॉप कंडक्ट करनी है, तेरा कंटेंट है। देन आई डिसाइडेड कि आई डू द वे आई वांट। मैं जिससे सेटिस्फाइड हूं मैं वही करूंगा। तो स्लो लर्नर्स के लिए टेक्नोलॉजी को हम अडॉप्ट करते हैं। एंड एक बुरा ना मानना, 10वां हिस्सा क्या 30-40% ना सैलरी दा अपने ते खर्चा करो। हर महीने 2-3 नवे सूट, बढ़िया मेकअप किट, क्लास में जाओ तो एकदम स्वैग से जाओ, एक ग्लो होनी चाहिए, यही जाएगा साथ में। मतलब मैं आपको फैक्ट बताता हूं कि जब आप क्लास में जाते हो बच्चा नोट करता है कि टीचर कैसा है। कहती है रेज करती है बच्चे जाते क्लास में। मैम आप स्मार्ट लग रहे हो आज, बहुत अच्छे लग रहे हो मैम आप। सर इयरिंग तक नोट करते हैं बच्चे, फुटवेयर भी नोट करते हैं। अरे बोल, बिल्कुल जी सही बोला है, बिल्कुल सही बोला है। ये शूज देख रहे हैं, मैं ड्राई क्लीन करा के कार में रखता हूं। सर आप भी बहुत स्मार्ट लग रहे हो आज। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। चलो मुझे पता पहली बार लगा आज। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। तो यू हैव टू बी लाइक दैट। अब आप बताओ, एक रिसोर्स पर्सन आया है, उसने ना तो ड्रेसअप अच्छा है ना उसने शेव किया, मैं आपको आज बताऊंगा इफेक्टिव टीचिंग क्या होती है। बोले तू पहले आप तो टीचर बन जा। तो टीचर शुड लुक लाइक ए टीचर। जैसे जितने भी देवता लोग होते हैं उनके पीछे एक रोशनी नहीं होती, ऐसे आपके पीछे रोशनी हो कि ये नीलम मैम आ रहे हैं, ये अग्रवाल मैम आ रहे हैं, ये चावला मैम आ रहे हैं, ये यस, और ये सब जा रहे हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आई इनवाइट लैंग्वेज टीचर्स, प्लीज बी विद मी। इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, ऑल लैंग्वेज टीचर्स। अब आपको कुछ समझ आया मेरी वर्कशॉप का मतलब क्या है? मैम आइए ना आप बहुत सीनियर हो मुझे मालूम है, कुछ सीनियर टीचर्स हैं उनको थोड़ा, कोई भी आ जाओ जी, आ जाओ कम, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ हियर, इधर आ जाओ। सर मेरा नाम सपना है। सपना मैम, किसी ने नहीं सुना, आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया? नहीं किया सर, सच में। थोड़ा आगे से। मेरा नाम सपना है, मैं MHR स्कूल में पिछले 4 साल से हूँ और मैं यहाँ पे हिंदी टीच करवा रही हूँ सर। ओके, दैट्स वेरी गुड। थैंक यू सर। आइए मैम प्लीज। I'm Deepa. I'm teaching since last 4 years. I'm an English teacher. Oh wow, great ma'am. Thank you. God bless you. सर मेरा नाम सविता है, मैंने MHR की अलग अलग सारी ब्रांचेस में 16 ईयर से जॉब कर रही हूँ मैं, और हिंदी टीच कर रही हूँ। पहले मैंने मदर टीचर्स की भी की है जॉब अलग अलग ब्रांचेस में, और अब सब्जेक्ट टीचर हिंदी की कर रही हूँ। वाह, पंजाबी टीचर्स नहीं है? पंजाबी टीचर्स नहीं है। ओके, पंजाबी दिवस तो नहीं है आज? ओके मैम आप कौन सा सब्जेक्ट लेते हैं? आइए मैम प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, आई नो यू वेरी सीनियर। तो आपको थोड़ा एम्बैरेसिंग लगता है? अच्छा, कई बार पता क्या होता है, कई टीचर बहुत सीनियर होते हैं, बोलते हैं इसकी हिम्मत कैसे मेरे को बुलाने की। ऐसा तो नहीं है ना? आइए प्लीज, इधर आ जाइए मैम, आप कॉन्फिडेंस से बोलिए। My name is Priti Garg. I have about 15 years teaching experience, 10 years before marriage, and 4 years I worked here. Because of the family commitment, I left, and last year I joined again. Wow, great. Welcome back. Thank you, sir. And a great comeback. जब हम कमबैक दोबारा करते हैं तो उसका एक अलग सा ही एक ऑरा होता है। वेल, हिंदी टीचर्स आइए प्लीज सभी लोग ना इधर मेरे साथ फ्रेम में रहिए। नहीं तो कोई बंदा बोलेगा ये वर्कशॉप नहीं की, खुद ही खड़ा होकर बोला के आ गया, तो आप लोग साथ में रहने चाहिए। हिंदी टीचर्स और इंग्लिश टीचर्स आपको एक चैलेंज मिलता है। इंग्लिश टीचर को खास तौर पे एक चैलेंज मिलता है कि तेरे स्कूल में हिंदी बोलते रहते हैं,
तेरे को इंग्लिश नहीं बोलनी आती, या तो पंजाबी क्यों बोलता है। ये एक बड़ा खतरनाक मिथ है जो पेरेंट्स के दिमाग में बैठा हो कि अगर मेरा बच्चा इंग्लिश बोलेगा तो वो बहुत लर्नेड है। लेट मी टेल यू वन थिंग, आप बच्चे को हिंदी भी सिखाओ, नंबर 1, इंग्लिश भी सिखाएं, यू मस्ट टीच इंग्लिश एंड यू मस्ट टीच पंजाबी। जब बच्चा किसी से कॉन्वर्सेशंस करे तो वो बोले, बेटा आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो? कि सर आई स्टडी इन, मैं पढ़ता हूँ MHR में। तेरे को इंग्लिश आती है बोलनी? सर प्रेस 1 फॉर इंग्लिश, प्रेस 2 फॉर हिंदी, प्रेस 3 फॉर पंजाबी। मतलब सर इफ यू स्पीक इन इंग्लिश आई विल रिप्लाई इन इंग्लिश, यदि आप हिंदी में उच्चारण करेंगे तो मैं हिंदी में उच्चारण करूंगा, जो तुसी पंजाबी च बोलोगे तो मैं पंजाबी च बोलांगा। अब जिसने बात करनी है ना, वो तीनों सब्जेक्ट को सैल्यूट मारेगा कि MHR में तीनों लैंग्वेज को बराबर रखा गया है और स्टूडेंट्स आर इक्वली स्किल्ड इन एलोक्यूशन, दे एलोक्यूट परफेक्टली इन इंग्लिश। वो हिंदी में भी बहुत बढ़िया वार्तालाप करते हैं और पंजाबी दे विच भी वो बहुत बढ़िया वार्तालाप करते हैं। तो इस स्कूल दे विच टीचर्स ने बहुत मेहनत की है। हाउ इज इट? ये प्रॉब्लम है कि नहीं कि स्टूडेंट्स आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश? तो आप बच्चों को सिखाएं, है ना? गुड आइडिया। सर प्रॉब्लम तो यही होती है ना, मतलब कि जो पेरेंट्स हैं या वो हैं स्कूल हायर अथॉरिटी, वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज को ही प्रेफरेंस दी जाती है। ठीक है, हिंदी में क्या होता है, मीन्स वी आर टीचिंग 5th 6th क्लासेस, ठीक है, स्टूडेंट्स आर गोइंग टू ट्यूशन, दे आर टेकिंग ओनली इंग्लिश, मैथ्स, SST, साइंस ट्यूशन। वी से हिंदी वर्क मैम वी डोंट गेट द टाइम नहीं होता। ठीक है, पेरेंट्स कह देते हैं मैम बच्चा ट्यूशन पढ़ के आया है, 2 घंटे वो 4 सब्जेक्ट करके आया, उसके बाद उसके भी पास भी टाइम नहीं था और हमारे पास भी टाइम नहीं था, बच्चे कहाँ से करते। In today's atmosphere, no one is giving importance to Hindi language. Only English is considered as the most important language. But this is not right. Every language is important. और अगर कोई बच्चा हिंदी में अच्छे मार्क्स स्कोर करेगा तो आपको रिप्लाई मिलेगा, नो प्रॉब्लम, हिंदी में तो बच्चों के मार्क्स आ ही जाते हैं। आई थिंक हिंदी इज द मोस्ट डिफिकल्ट लैंग्वेज फॉर एग्जाम्पल रीजन। इंग्लिश में आप वर्ड्स की स्पेलिंग लर्न करवाओगे बच्चे को, CAT कैट, BAT बैट, बट हिंदी में आप कैसे करवाओगे? क ओ को, श कोई श। दिस इज नॉट एन इजी लैंग्वेज टू टीच। ठीक है, उसमें हिंदी में क्या है, हमारे पास 26 लेटर्स हैं, हम उसको रिपीट करके बच्चों को वर्ड्स करवा सकते हैं। बट हिंदी में क्या है, बहुत ज़्यादा उनके पास क्या होता है, बिंदी की मिस्टेक है, चंद्र बिंदु है, छोटी ई है, बड़ी ई है, काफ़ी प्रॉब्लम्स बच्चों को आती हैं। बट इवन देन हिंदी इज नॉट गिवन इट्स प्रॉपर इम्पोर्टेंस इन टूडेज वर्ल्ड। यस मैम, आई एम सेविंग टाइम ना, मैं आपको सुन भी रहा हूँ और आपकी बात को भी समझ रहा हूँ, और आपने हिंदी की प्रॉब्लम को इंग्लिश में बहुत बढ़िया बताया। सर बिकॉज आई एम MA इंग्लिश, I used to take tuitions of English at home, but when I joined this school, there was the vacancy of Hindi teacher. ठीक है, So, that's why I joined here. But it's not my qualification; it's my mastery of over Hindi. वाह, ग्रेट। मैं आपको सैल्यूट करता, तभी मैंने बोला 10th तक हम इच्छाधारी टीचर होते हैं। I don't have any degree in Hindi, but mastery over Hindi. अरे डिग्रियों से कुछ नहीं होता। गुरु नानक साहब के पास कोई डिग्री नहीं थी, राइट? धर्मेंद्र ने कहीं से एक्टिंग नहीं सीखी, दिलीप साहब ने कहीं से एक्टिंग नहीं सीखी, ठीक है, किशोर कुमार ने कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली, तो लोग उनको सैल्यूट करते हैं। एक्चुअली हम हिंदी में इफेक्टिव वे कैसे बनाएं, हिंदी को इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं, ये एक क्वेश्चन है। तो मैंने कुछ लिखा बोर्ड पे, हालांकि मैं टेक्निकली आई एम एन इंजीनियर, तो मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है, ऐसे किसी ने मुझे सिखाया कुछ, तो मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ मैंने कुछ लिखा है। क्या लिखा है मैंने, कोई पढ़ेगा? गया, हाँ गया, हाँ हाँ, अब तेज तेज पढ़ो। है, देखो गलती ले ली इन्होंने। लो मैम,
इतना तो हमें माफ है इंजीनियर्स को। अब इसको तेजी से पढ़ोगे आप तो क्या आएगा? ज्ञान आ गया, दाल चावल खा गया। अब ये जो बच्चा अभी आप बता रहे थे ना भूल जाता है, उसको दाल चावल भी याद रहेंगे। गया 1 ना 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 10 वर्ड्स वो याद कर गया। कैसा है? अमेजिंग। तो कुछ ना कुछ हमें क्रिएट करना पड़ता है। अब मेरे को मेरी टीचर ने बताया था ये, तो मेरे को अभी तक याद है। कभी कभी हम फन क्रिएट कर देते हैं। मिला रहे तो नर रहे, मिला रहे तो नर रहे, अलग हुए तो नार, सोने जैसा रंग है कोई इंटेलिजेंट चतुरा करे विचार, क्या हो सकता है? मिला रहे तो नर रहे, अगर वो जुड़ा हुआ है तो मेल है, अगर वो अलग हो जाए तो फीमेल है। येलो येलो गोल्डन गोल्डन कलर है उसका, तो कोई बताए क्या है? ज्ञान नहीं है जी, कुछ चीज है ऐसी। चलो मैं बताता हूं। चना, मिला रहे तो नर रहे चना, अलग हुए तो चने की दाल। सोने जैसा रंग है मींस येलो। तो कुछ फन भी होता है सब्जेक्ट में, जैसे अधि कटे तो सबको मारे, अंत कटे तो सबको तारे, ना जाने कैसा है जैसा देखो वैसा है। अधि कटे तो सबको मारे, अंत कटे तो सबको तारे, ना जाने कैसा है जैसा देखो वैसा है, क्या हो सकता है? ये हिंदी का बड़ा फेमस है, ये है काजल। अधि कटे तो सबको मारे काल, अंत कटे तो सबको तारे काज, आंखों में डाल लो ना जाने कैसा है जैसा देखो वैसा है। एक पानी का गिलास छोड़ ही जाओ। ओके, थैंक यू थैंक यू। नहीं, खुद ही ले लेंगे हम लोग, सेल्फ सर्विस करेंगे, आप कष्ट ना लें। जिसको भी टीचर को प्यास लगेगी खुद ही आ जाएंगे, है ना। थैंक यू, आपने इतना अच्छा सोचा। सेक्शन हम अभी समय ओवर कर देते हैं। हाँ जी, ठीक ठीक है ठीक है। हाँ, मुझे 12:30 बोला था, मैं 12:20। चलो 10 मिनट एडवांस। नहीं, 12:20 पे कर दे वाइंड अप। नहीं, आई विश व्हाट यू विश, अदरवाइज देयर विल बी अ विश। हाँ, बढ़िया 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 है। तभी कहते खाली पेट ना हो भजन। तभी एक मैम ने बोला मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया, तभी मैं धीरे बोल रही हूँ। तो इसके बाद हम मैथमेटिकल टिप्स पे भी जाएंगे, कुछ फिजिक्स केमिस्ट्री पे भी डिस्कस करेंगे। तो ये चीजें हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं। तो बच्चे इससे कनेक्ट होते हैं, बच्चे इससे कनेक्ट होते हैं। सिलेबस पढ़ा के और पढ़ के किसी को मजा नहीं आता। सिलेबस से जो हटके बातें आप करते हो वो आपकी क्रिएटिविटी है। जो सिलेबस में लिखा हुआ है वो कोई भी करवा देगा। आपने अपना वो एक एक एक, एक क्या बोलते हैं उस पे एक छाप छोड़नी है कि बच्चा रोज आपसे कुछ नई चीज लेके जाए, और वो घर में जाके पता बच्चा क्या बोलेगा? मम्मा, मिला रहे तो नर रहे, अलग हुए तो नार, सोने जैसा रंग है कोई चतुरा करे विचार। क्या हुआ? मैडम ने बताया, आज बता क्या। हिंट दो, संडे को बनाए थे आपने क्या? परोठा ना, छोले। मिला रहे तो नर रहे चना, अलग है तो चने की दाल। दूसरे दिन एक बताना बस, उसको सिलेबस नहीं याद रहेगा। जो वो बच्चा नहीं आपका जो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस वाला, वो उसको चना याद रहेगा। अगले दिन फिर वो जाएगा, मम्मा अधि कटे तो सबको मारे, अंत कटे तो सबको तारे, ना जाने कैसा है जैसा देखो वैसा है। क्या है? मतलब को कुछ नहीं पता। काजल, जा, काल एंड सो ऑन। तो लाइक दैट इट मेक्स यू टू बी डिफरेंट। पहले मूवीज होती थी, आपके बठिंडा के सुपरस्टार थे पंजाबी फिल्मों के, श्री मेहर मित्तल जी। Yes.
तो वो किसी भी पिक्चर में अगर वो ना हो तो पिक्चर फ्लॉप हो जाती थी। तो उनका एक बड़ा फेमस वर्ड था हैंकना, तो एवरीवन इमिटेट्स हिम व्हेन वी, है ना। तो वो क्या है, उनकी यूएसपी है, वो हर मूवी में रिपीट करते थे और हर मूवी में अलग लगता था। और बाहर आके लोग ना हीरो की ना हीरोइन की बात करते थे, वो मित्तल साहब की बात करते थे। इसी तरह से बच्चा है, वो जब पढ़ के जाएगा आपका फैन तब बनेगा जब आप चोरी कुट्टा हो खांदा नहीं, ऐसे दिल दा मास्क खोया, है ना। सो डियर टीचर्स, वी विल बी हैविंग ए ब्रेक एंड उसके बाद हम थोड़ा चार्ज होके मिलते हैं। वी विल बी डूइंग सम मैथमेटिकल इवेंट्स, सम साइंस इवेंट्स एंड हिस्ट्री इवेंट्स, राइट। एंड पंजाबी का एक पॉइंट रह गया, वो फिर ब्रेक के बाद। थैंक यू, थैंक यू।